कर लो, जिसका कैमरा ऑन है उसका अटेंडेंस होगा, ठीक है। थोड़ा रिकैप करते हैं लास्ट क्लास का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आइटा इज रूट -1, आइटा स्क्वायर -1, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आइटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1। देन आयोटा रेज टू पावर 4n इज ऑलवेज 1। iota 4n plus 1 is iota. Iota 4n plus 2 will be iota square, that is -1. Iota 4n plus 3 would be iota cube, that is minus iota. ये चार रिजल्ट लास्ट क्लास में किए थे. Then we also did complex number is an ordered pair x comma y, which can also write it this way: x plus iota y. X is the real part and y is imaginary part. So real part of the complex number is x. Imaginary part of the complex number is y. और फिर लास्ट क्लास में आई डिड मॉड्यूलस ऑल्सो. Modulus of a complex number is अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर्ड प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर्ड प्लस imaginary part of z whole squared. And then we did some properties also of the modulus thing. आज we'll start with complex number. आओ. Conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of its imaginary part, right? So if we have a complex number z, which is x plus iota y, its conjugate will be written as z bar. You place a bar on it, and then it becomes x minus iota y. So conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of its negative part, imaginary part. Simmer, it's your first class? Yes, sir. This is my first class. Okay, camera on kar lo. So conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of imaginary part. अगर हम कोई complex number लें -5 + 6 आयोटा, तो उसका conjugate क्या होगा? राइट, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना होगा हमें, ठीक है. इफ यू फाइंड conjugate of a conjugate, then what happens? Right, if I find conjugate of this, z bar का whole bar will be the same complex number again. Just say if you multiply with negative sign 2 times, it'll be the same. So z bar whole bar would be same complex number. एक काम करते हैं. Suppose z is this, then z bar would be this. Let's write down some results. If you add with z bar, क्या होगा? If you find z minus z bar, लिखते जाओ, write your answer. If you multiply a complex number by its conjugate, then what happens? अब तुम सब लोगों के टेस्ट इकट्ठे हुआ करेंगे, साउथिक सेंटर ऑनलाइन एंड गुड़गांव सेंटर. जिसने कोई टेस्ट मिस किया तो मतलब मिस हो गया, ये नहीं कि कल देंगे परसों देंगे. आई विल नॉट लिस्ट दैट रिजल्ट इन द लिस्ट. जो लास्ट ईयर तक होता था वो नहीं चलेगा अब. एक डे फिक्स हो जाएगा, उसी दिन टेस्ट देना है सबको. जिसका मिस हो गया वो मिस हो गया. z प्लस जेड बार क्या आएगा? दिस इज z, दिस इज z बार, दिस वुड बी 2 आयोटा 2 2x हो जाएगा, ठीक है. एंड दैट इज, व्हाट इज x?
x is the real part of z, that is 2 times real part of z. ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो 2 टाइम्स रियल पार्ट आएगा। एंड रियल पार्ट ऑफ a complex number will be always z plus z bar by 2। ये भी तुम याद कर सकते हो। रियल पार्ट ऑफ a complex number would be z plus z bar by 2। सब लोग कैमरा ऑन कर लेना अपना, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा वो उसका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा, लेट मी टेल यू इन एडवांस, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। नंदिनी, आवाज आ रही है? एक और नंदिनी है, तुम ही नहीं हो दुनिया में। इसमें क्या आंसर है बताओ नंदिनी, इस बार तुम्हारा चांस। 2 iota y, right? So what is y? That means z minus z bar is 2 iota times imaginary part of z। कहने का मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे को इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो कैसे आएगा वो? z में से उसका कॉन्जुगेट चुपके से माइनस कर दो और 2 आयोटा से डिवाइड कर दो। So imaginary part of a complex number is z minus z bar by 2 iota. What about z into z bar? It is a very important result. If you multiply x plus iota y with x minus iota y, it would be x square plus minus iota y whole square. Iota square कितना होता है? -1. This result you have to remember. And this is also mod z का whole square. ये बहुत काम आने वाला है। z into z bar is always mod z का whole square, modulus of the complex number whole square। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। सो यू कांट मिस ए क्लास। इफ यू मिस ए सिंगल क्लास, मैंने बताया था लास्ट वीक, योर रैंक वुड शिफ्ट बाय हाउ मच? नूर बताना, कितना शिफ्ट होती है रैंक? मिनिमम 100, ठीक है। कोई सर, क्लास मिस नहीं करेगा। हाँ, एक बार z माइनस z बार वाला एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? z माइनस z बार में 2 आइटा y आ गया ना, तो y क्या है? y इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में कैसे निकलेगा? z माइनस z बार को 2 आइटा से डिवाइड कर दिया। सो इफ यू डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z माइनस z बार को 2 आइटा से डिवाइड करोगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, और रियल पार्ट के लिए हम z में z बार ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर तुम्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करना है तो हम क्या करते हैं? उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे मॉड z स्क्वायर आता है, एंड मॉड z स्क्वायर इज ए रियल नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब, some more results. Suppose we have a complex number z1 which is a plus iota b. Another complex number is z2 which is say c plus iota d। लिख लो एक बार। तो तुम्हें बुकलेट्स मिली, उनको खोल के देखा? देखा है? स्टार्ट कर दो वहां से क्वेश्चन करना। मैथ्स की हैं वो, कबाड़ी को दे दी होंगी मम्मी ने, मुझे मालूम है। उसको वापस मंगा लो और पढ़ना शुरू कर दो वहां से। अब बुकलेट वहां से कलेक्ट कर लेना है ना, बुकलेट्स मैथ्स का। खोल के नहीं देखी ना अभी तक? हाँ, जिन पे लिखा हुआ है मैथ्स एग्जाम्पलर, एक्सेल फाइल। हाँ, चलो अच्छा है तुमने देखा तो सही खोल के। So if you have two complex numbers z1 and z2, there are some results like if you have z1 plus z2 whole bar, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? z1 plus z2 whole bar क्या होगा? The bar will distribute, ठीक है। z1 bar यहाँ प्लस होगा माइनस होगा? It'll be plus. So whenever two or more complex numbers are added, you take conjugate of all the numbers, the bar will be distributed. Same goes with
minus also. If you have z1 minus z2 whole bar, it will be z1 bar minus z2 bar. z1 minus z2 whole bar would be z1 bar minus z2 bar. बीच वाला साइन चेंज नहीं होता है. That is the main thing. If you have z1 and z2 two complex numbers and you find conjugate of the product, it will be the same as product of the conjugates. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट्स. वान्या लिख रही हो सारा? तुम्हें लिखने की आदत नहीं है? मैं लिख रही हूँ। इसको तुम जनरलाइज भी कर सकते हो. इफ आई हैव थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3 होल कॉन्जुगेट तो क्या होना चाहिए? यस, प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट. And you can generalize this with n complex numbers also. z1 z2 till zn whole conjugate will be equal to z1 conjugate z2 conjugate till zn conjugate. हाँ, और इन रिजल्ट्स में अगर हम z1 z2 z3 को z से रिप्लेस करें तो क्या होगा? If I replace z1 and z2 by z, it will become z square whole conjugate equal to z conjugate का whole square. ठीक है? The power comes out. In general, you can say that z to the power n whole conjugate will be z conjugate to the power n. मान लो तुम्हें फाइंड करना है 2 प्लस 3 आइटा की पावर 5 होल कॉन्जुगेट निकालना है. तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लस पहले 2 प्लस 3 आइटा टू द पावर 5 को तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो बायनॉमियल से. व्हाट यू डू इज फर्स्ट यू कैन फाइंड कॉन्जुगेट, या उसको एक स्टेप बाद लिख देते हैं, एंड देन टू द पावर 5. इनफैक्ट टू द पावर 5 भी हमें नहीं करना होगा. विल कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म एंड देन अप्लाई डिमॉर्वर्स थ्योरम. अभी करेंगे वो सारा. So this is how you can use this. Then next result is if you have z1 by z2 whole conjugate, it will be z1 conjugate by z2 conjugate. If you have z1 by z2 whole conjugate, conjugate दोनों में distribute हो जाएगा. It will be z1 conjugate by z2 conjugate. विहान तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है? सर मैं अभी अभी घर आया था, मैं अपना वो डिवाइस स्विच कर रहा हूँ। कर लो जल्दी से. अभी तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं. एक काम करते हैं, आई राइट अ रिजल्ट जो तुम्हें डिराइव करना है. z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर mod z1 स्क्वायर mod of z2 स्क्वायर plus 2 times the real part of z1 z2, and the notice or the warning is that you can't take z1 as a plus ida b, z2 as c plus ida d. वो नहीं ले सकते. बिना z1 z2 को लेट किए तुम्हें LHS से RHS लाना है. एंड हिंट क्या है? जो हमने अभी किया है, पिछले 10 मिनट में जो किया है उससे तुम्हारा काम हो जाएगा. करो. गेट RHS फ्रॉम LHS विद, नहीं अलाउड नहीं है, फाउल हो जाएगा. फाउल हो जाएगा, अलाउड नहीं है. ठीक है? फ्रॉम LHS गेट RHS विदाउट एनी लेट और लेट गो. जो अभी रिजल्ट किया ना मैं 10 मिनट में, वही यूज होने वाला है. चीटिंग कर सकते हो. जो तुमने अभी 10 मिनट में किया है वो सारा यूज हो सकता है. कायशा समझ में आ रहा है? लग नहीं रहा मुझे. लिखा है पुराना रिवाइज किया तुमने? बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है कॉम्प्लेक्स का भी. सर
हाँ, सर कुछ डाउट्स थे कॉम्प्लेक्स से। व्हाट्सअप कर देना। एक्सेल फाइल से। अच्छा ठीक है सर। सर हम्म। मुझे बोलो। ये समझ में नहीं आया जो आपने पहली चीज लिखी थी ना, जेड प्लस कौन जेड। सा वाला? जो आपने पहली चीज नहीं लिखी थी कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस वो तो ऐड कर दिया सीधा सीधा। जेड एक्स क्या है? अरे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई था। हम्म। z बार किया विच इज एक्स माइनस आइटा वाई। दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा? z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x। ये कट गया। 2 को नीचे डिवाइड कर दो, टू है। ये x आ गया। x क्या होता है? x इज रियल पार्ट ऑफ z। ओके ओके। ठीक है। जो हमने अभी किया है 10 मिनट में, उसी में से ये सारे रिजल्ट आएंगे। हाँ, वो लगा सकते हो। जो अभी अभी किया था उससे ही आंसर आएगा। कर लिया? ऋषा आई थी, कहाँ चली गई? ऋषा आई थी ना क्लास। अच्छा, जेई नहीं कर रही है वो। ओके। नहीं नहीं, मैथ्स छोड़ नहीं सकते, बट ये जेई मैथ्स कर रहे हैं ना, वो नाटा मैथ्स करेगी बाद में फिर। तो शी वोंट बी राइटिंग जेई, बिकॉज यू डोंट हैव केमिस्ट्री, कैन राइट जेई। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। नहीं, करो फिर। जो हमने अभी किया है पिछले 10 मिनट में, एक बार जरा देखो, उसको रिवाइज करो, उसी से तुम्हें हिंट मिल जाएगी। दिव्या हो गया? सर अगर हम एक साइड पे कॉन्जुगेट लेंगे तो दोनों साइड हाँ, राइट साइड से किया। हाँ, इससे इसको ला सकते हो, इससे इसको भी ला सकते हो। हाँ। ये क्या किया इसका? ठीक है, परफेक्ट है। देखो, हमने एक रिजल्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना था? जेड इंटू जेड बार। तो जब भी मॉडुलस को तुम्हें हटाना है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 होल बार। आई एम यूजिंग दिस। ठीक है। माही, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या करोगे? एक और प्रॉपर्टी की थी अभी हमने। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें? नहीं, जब दो कॉम्प्लेक्स को ऐड करके कॉन्जुगेट लेते हो तो क्या होता है? कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन यू सिंपली ओपन द ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई कर लो। z1 इंटू z1 बार, z2 इंटू z2 बार, देन z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। यही आएगा काव्य। अब वापस हिंट, चीटिंग कर लो यहाँ से। z इंटू z बार क्या था? तो ये मॉड z1 का स्क्वायर हो गया, ये मॉड z2 स्क्वायर हो गया। अब जरा देखते हैं कि हमें लाना क्या है। हमें ये बचा है। आरएचएस में दो टर्म आ चुकी है, दिस इज लेफ्ट। अब नाउ जस्ट लुक एट द नोट्स जो हमने अभी किए थे, कि कहाँ पे मैंने लिखा था ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ जेड। याद आ रहा है कहीं पे? ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ जेड था, जेड प्लस जेड बार है। यहाँ से हिंट मिल रही है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसे कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो उसका ट्वाइस द रियल पार्ट आ जाएगा। तो आई वॉन्ट z1 z2 बार। z1 z2 बार ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कैसे बनेगा? z1 z2 बार होना चाहिए यहाँ पे, जब आई हैव कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड z बार। ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 बार। टेल यू वन थिंग, इसको कैन आई राइट z1 z2 बार का होल बार और नॉट? बिकॉज जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो z1 बार आएगा विच इज देयर,
Z2 बार का बार इज Z2, ठीक है। तो दिस इज Z1 Z2 बार का होल बार। तो Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार विल बी ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ Z2 bar. So this is an important result which you can remember. वो भी सेम आएगा। हाँ, तो Z1 Z2 बार की जगह Z2 Z1 बार भी हो सकता है ये। नहीं नहीं नहीं, चेंज हो जाएगा फिर तो माइनस साइन आ जाएगा ना, रियल पार्ट में माइनस आएगा। नहीं नहीं नहीं, दोनों में चेंज आएगा। देखो, Z1 Z2 बार Z1 इज A प्लस आइटा B, Z2 बार इज C माइनस आइटा D। रियल पार्ट में क्या आ रहा है? AC प्लस BD। लेकिन अगर मैं लेता हूं Z1 Z2, तो फिर क्या आएगा? चेंज हो गया ना। बट ये हो सकता है, हाँ। हाँ, लास्ट को तो वापस देखते हैं। हमें हमें ये टर्म मिल चुकी है, ये टर्म मिल चुकी है। ओनली प्रॉब्लम इज दिस, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। फॉर अ मोमेंट मैंने इसको Z मान लिया। तो ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ Z क्या होता है? ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ Z होता है Z प्लस Z बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो ट्वाइस द रियल पार्ट आता है। तो वी हैव Z1 Z2 बार। अगर यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा इंटरचेंज, इसको चेंज किया थोड़ा सा। दिस इज Z1 Z2 बार का होल बार। तो लेट्स वेरीफाई कि ये टर्म और ये टर्म सेम है या नहीं है। व्हेन आई ओपन दिस, इस टर्म को अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या आएगा? Z1 बार, ये होगा Z2 बार का बार, ये आएगा Z1 बार इंटू Z2। दिस एंड दिस टर्म इज द सेम। दैट मीन्स Z प्लस Z बार इज ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक है, एनीवन हैज एनी डाउट? इसका एक और रिजल्ट है, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। दोनों रिजल्ट लिख लो। सर इन ये प्ले रिजल्ट यूज कैसे करते हैं? अभी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो यूज होगा ये। हाथ से यूज करेंगे। हम बहुत सेल्फिश लोग हैं, वही चीज पढ़ते हैं जो काम आती है, ठीक है। ये मत सोचना कि हम खाली पीली इतना एक्स्ट्रा कर रहे हैं। जो एंट्रेंस में आएगा वही कर रहे हैं। हाँ। हम्म। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वी कांट से। कई बार क्या होता है, जो तुमने बिल्कुल लगता है कि बहुत टफ था वो नहीं आता एंट्रेंस में, यही तो प्रॉब्लम है। एंट्रेंस बिकम्स सो डिफिकल्ट, दिस इज द रीजन। कुछ भी आ सकता है, बहुत इजी भी आ सकता है। मान लो तुमने बहुत टफ चैप्टर सारे करके चले गए तुम, एक इजी चैप्टर था वहां से क्वेश्चन आ गया। सभी करना है। यू आर ए 2 ईयर स्टूडेंट, तुम्हें तो बहुत पढ़ना था, तुम पढ़ ही रही। अब पढ़ लो, अभी बहुत टाइम है। लास्ट वीक ऑफ, हाँ, लास्ट या सेकंड लास्ट वीक ऑफ जैन में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए होगा। तो डिसाइड कर लो कितने डेज हैं, कैलेंडर बना लो और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। सारी बाकी एक्टिविटीज जीरो। खाना पीना और पढ़ना, दो चीजें हैं तुम्हारे पास, और कुछ नहीं। मोबाइल को पानी की बाल्टी में डाल दो, 1 साल बाद उसको निकालना, जब तुम्हारा जेई रिजल्ट आएगा दो निकलेंगे फिर मोबाइल। हाँ, मैथ्स को तो जितना टाइम दोगे उतना कम होगा, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चंस विल बी लेंथी एंड विल बी टफ। अभी तुम रियलाइज करो, अभी करेंगे 3-4 क्लास के बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो मैथ्स तो जितना टाइम दोगे उतना ही कम होगा, बिकॉज मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन लेंथी आते हैं, दे मे नॉट बी वेरी टफ। तो एक जगह एक स्टेप में छोटी गलती हो गई तो देन तुम्हारा इंटायर क्वेश्चन कौन रहो, 10 मिनट चले गए। एंट्रेंस में वैसे इतना प्रेशर होता है, अगर एक क्वेश्चन में तुमने 20-15 मिनट लगा दिए है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे हाथ पांव हिलने लगे, अरे इतना टाइम निकल गया, अब क्या करें। देन यू लीव मैथ्स एंड स्टार्ट डूइंग एप्टीट्यूड और मे बी ड्राइंग और समथिंग एल्स। पीसीएम वाले बच्चे पहले केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, इस बार क्या हो, केमिस्ट्री सबसे टफ आया, न्यूमेरिकल बेस्ड। मैथ्स तक पहुंचे बोले 40 मिनट बचते हैं उनके पास। तो जेई पेपर 2 में फिर भी फायदा है कि तुमने प्लानिंग का फॉर्म भर दिया तो आधा घंटा वहां मिल गया। एप्टीट्यूड आधे 50% मार्क्स का होता है, वो 30 मिनट्स में हो जाता है। पीसीएम वालों के साथ तो है ही, फिजिक्स भी बहुत टफ आता है।
तो वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है. इफ यू ऐड दीज टू रिजल्ट तो क्या होगा? z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा सारा ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा ट्वाइस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर. तो दीज थ्री रिजल्ट्स. एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसे बेस्ड. यू हैव 10 minutes टू आंसर. करो. A, B are real numbers. Z1, Z2 are complex numbers. A, B are real numbers. Z1, Z2 are complex numbers. Take your own time. There's no hurry. आराम से करो. सर बोलो. आपको व्हाट्सएप कर दिए थे क्वेश्चंस. ठीक है. ये सारी क्लासेस एनआईसीएस इंस्टीट्यूट वाले यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी. ठीक है. लास्ट वाली क्लास भी अपलोड हो चुकी है. सर मुझे एक डाउट था क्या? बताओ. कि जैसे कि ये है कॉन्जुगेट है, मतलब मॉड्यूलस है, तो उसमें से हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर को तो बाहर निकाल सकते हैं ना? मतलब जैसे कि 4+6 में हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटू हाँ हाँ, यू टू कैन डू प्लस थ्री दैट. एंड ओके एक और ओके। बात होती है कि जो रियल नंबर होता है ना, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो 2 से मल्टीप्लाइड है और तुम इसका पूरा कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो दिस इज सेम एज 2 into z बार. किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम आता है, वापस वही आता है. ओके सर, यस। इफ यू हैव 2z का होल कॉन्जुगेट, इट बी 2 into z कॉन्जुगेट. ओके सर, थैंक यू। यदवी फ्रॉम मुरादाबाद. यस सर। ओके. सिंप्लीफाई करना है पूरा. कितना सिंप्लीफाई हो गया है? नहीं नहीं नहीं, z के टर्म में आएगा. हाँ, z के टर्म में आंसर आएगा. और सिंप्लीफाई हो सकता है, तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो. काफी हद तक सही है तुम्हारा, लेकिन सम सिली मिस्टेक हियर एंड देयर. सर हम्म Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर होल इंटू A² प्लस B²। मॉड गायब कर दिया तुमने, मॉड खा गई. हाँ, वो Z1 और Z2 पर मोड है। हाँ, तो फिर जेड स्क्वायर और मॉड जेड स्क्वायर में बहुत फर्क होता है. जेड स्क्वायर विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर एज मॉड जेड स्क्वायर वुड बी अ रियल नंबर. चेक करो, कहीं थोड़ी सी गलती हो रही है. तुम डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं कर सकती? इतना लंबा हो रहा है, वैसे इससे भी आंसर आएगा. डायरेक्ट रिजल्ट जो ऊपर लिखा हुआ है वो यूज कर लो. आई डोंट यूज दिस रिजल्ट, ये वाले कर लो. देखो, इसमें हम डायरेक्टली रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, जो हमने अभी लिखा है ना. अगर पूरा मेथड से करना है उसमें टाइम लग जाएगा. आई कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट. ये वाला रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. सिर्फ डिफरेंस ये कि Z1 की जगह A Z1 आ गया. सो दिस वुड बी मॉड ऑफ A Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ B Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार
ए जेड वन इंटू बी जेड टू बार, कोई इशू नहीं है। अब मैंने बताया था कि रियल नंबर्स में से अगर कोई रियल नंबर किसी कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाइड है, यू कैन ऑलवेज कॉन्जुगेट में भी बाहर आ सकता है वो, और वैसे ही बाहर आ सकता है। तो हम यहाँ, हाँ, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिस इज ए स्क्वायर इज आउट, दिस इज मॉड जेड वन स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बी जेड टू मॉड का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर। दृष्टि तुमने यहीं पे गलती कर दी, तुमने रूट कैसे, स्क्वायर था ना वो तो, हाँ वो स्क्वायर था। एंड दिस इज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बी जेड वन जेड टू बार। ये पहला रिजल्ट आ गया तुम्हारा। अब सेकंड रिजल्ट यूज कर लेते हैं इस वाले में, या माइनस साइन है ना, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला क्या है, अब मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, मॉड बी जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ए जेड टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार। तो बी जेड वन एंड ए जेड टू होल बार। तो देखो मतलब जरा, डायरेक्टली थर्ड वाला यूज नहीं कर सकते जो थर्ड वाला रिजल्ट आया था? थर्ड वाला यूज नहीं कर सकते, तुमने बिल्कुल सही कहा, सही बोला इस लड़की ने। क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ चेंज है, बी जेड वन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही चेंज हो गया ना। अगर ये होता ए जेड वन माइनस बी जेड टू तब यूज हो सकता था वो, ठीक है सर। इफ इट वर ए जेड वन माइनस बी जेड टू, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, इसमें भी रियल पार्ट बाहर आ जाएगा, है ना। तो बी स्क्वायर बाहर आ गया, मॉड जेड वन स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ गया, मॉड जेड टू स्क्वायर, दिस इज माइनस टू टाइम्स, ए तो रियल नंबर है, फर्क पड़ेगा नहीं उसको, जेड वन जेड टू बार। इन दोनों को ऐड कर दो। सर आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में फिर मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इज बी स्क्वायर मॉड जेड वन स्क्वायर, ए स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, मॉड जेड वन स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज, ये इसका आंसर है। तो थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, एंड लेट मी टेल यू, दिस इज आईडी एडवांस क्वेश्चन, आईडी एडवांस में आया क्वेश्चन है ये, तुम लोगों ने कर लिया। ऐसे ही आते हैं, मेहनत करोगे तो सब कुछ इजी लगेगा, नहीं करोगे तो टू प्लस टू भी फोर नहीं पता लग पाएगा। क्यों सामने ऐसे ही बोल रहा हूँ। आगे बढ़े अब, तो कॉन्जुगेट सबको समझ में आ गया, राइट। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बिल्कुल सही है। तो सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 is a plus iota b and z2 is c plus iota d. They are two complex numbers which are basically equal. मान लो z1 is equal to z2, ये हमें गिवन है। तो z1 क्या है, a plus iota b, z2 क्या है, c plus iota d। दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर, बताया था ना लास्ट क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर। सो ए प्लस आइडा बी को हम ए कॉमा बी लिख सकते हैं, सी प्लस आइडा डी सी कॉमा डी। सो वेन एवर कंपेयर टू ordered pair, first element equal to first element and the second element equals to second element.
That means A is equal to C and B is equal to D. What is A? A is real part of Z1. What is C? Real part of Z2. कहने का मतलब whenever two complex numbers are equal, real part will be equal to real part and imaginary part will be equal to imaginary part. सर हम्म हमने जो ऑर्डर्ड पेयर बनाया है उसमें हम लोग A, I, B नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, सही कहा तुमने, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आया नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट हमेशा आइटा का कोएफिशिएंट होता है। शी सेज कि यहाँ पे ए कॉमा आइटा भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो आई सेड नहीं लिखेंगे, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, बताना मुझे। बी है, आइटा बी है, B. फिर आइटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ना कि पूरा आइटा भी इमेजिनरी पार्ट होगा। और कुछ क्वेश्चन कर लें? सर तो अगर हमें Z1 प्लस Z2 करना होगा तो हम हाँ, लोग A प्लस C इक्वल टू B प्लस D करेंगे। यस, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं, रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं। Answer this. तो वो 2i है ना? कौन सा? हाँ, 2 x माइनस 2 i प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4 i इक्वल टू 10 प्लस 2 i। हम्म पहले इसको ओपन करो पूरा, फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करो। सिली मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी। वो वो मैंने ऐसे दे दिया था, हो सकता है, हाँ ठीक है, जो भी आ रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना? दिव्या हो गया? में यार तो आवाज गायब हो जाती तुम्हारी। फ्रैक्शन में यार फ्रैक्शन में आ रहा है? यस सर। y डिफ्रैक्शन की वैल्यू -29/23 आ रही है एंड x की -2/23। मेरी अलग सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या माइनस हो रहा है ऐसा? -58/48 आ रहा है भाई, और x लो कर लो बात। मेरा सर वैल्यू -58/50 आ रहा मेरा -58/46 आ रहा है और एक -2/23। एक एक बार सब लोग चेक कर लो अपने अपनी कैलकुलेटर, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। किसी का मैच नहीं कर रहा ना? किसका मैच कर रहा है? एक्स की वैल्यू किस क्या आ रही है कॉमन सबके? 86 -2/23। -2/23 सब हाँ में। सर, x की आ रही है। कितना 25 कितना 18 बाई -2/23। एक्स की वैल्यू 18/25 आ रही किसी की? अच्छा, करो। 26 आ रहा है किसी सर का?
सर हाँ सर एक्स की 20/25, साथ वाई की है 111/10। ओके। चल आई थिंक मेरा सही है, मैंने कैलकुलेशन चेक कर ली। कैलकुलेशन चेक कर लो, मैंने कहा था आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी के चक्कर में पता लगा। एक बार इतना चेक करो, ये आ रहा है तुम्हारा? 18/25 आ रहा है। रियल पार्ट क्या है इसका जरा देखना। x-8y रियल पार्ट था दृष्टि। बस फिर कैसे काम चलेगा? इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है? 6x - 2y = 2। ये दो इक्वेशन आ रही है, इसको सॉल्व कर लो। कौन सा 8y? हाँ हाँ। देखो, इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका तुम्हें मालूम ही है, एलिमिनेशन कर सकते हो, है ना? ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है ना पूरा। हम्म। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी को आता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। काव्या को आता है? करना है बोर्ड पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों आंसर इकट्ठे आते हैं विदाउट एनी सिली मिस्टेक। पूरी इक्वेशन को लोड 0 लिखो, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे -y लिखोगे, और यहाँ लिखोगे 1। समझ लो एक बार, ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में अक्सर गलती होती है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? इक्वल टू 0 करके दोनों इक्वेशन लिख दी, फिर x लिखा, -y आएगा हमेशा, ठीक है? इसकी वजह से माइनस नहीं आ रहा है वो, इट कुड बी प्लस ऑल्सो, तभी -y आएगा। अब इसको हाइड करो, x के डिनोमिनेटर क्या आएगा, इसको हाइड कर लो। -8 × -1 कितना हुआ? दिस इंटू दिस, 8। बता रहा हूँ भाई, माइनस साइन, -10 × -1 कितना हो गया? 10। ये आ गया x का डिनोमिनेटर। फिर y के लिए क्या करोगे? इसको हाइड किया, 1 × -1, -1, माइनस साइन लिखो यहाँ पे, इसको हाइड किया, -10 × 3, -30। फिर कांस्टेंट टर्म को हाइड किया, 1 × -1, -1 हो गया, माइनस साइन, फिर इसको हाइड किया, -8 × 3 कितना हुआ? -24। हाँ, तीसरे माइनस 1 लेंगे, तो x/-2, ये कितना हो गया? y/-, -29। दिस इज 1/-, -25। दिस इक्वल टू दिस करो, x कितना आ गया? 2/25 आ रहा है x। ये आ रहा है x बाई 2/25 x। 2/23 यार। सर एक मिनट, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, 23। 2/23। एंड y कितना आ रहा है? सर माइनस भी आ रहा है x में। -29/23। ठीक है। हम्म। y माइनस आ रहा है, y माइनस आएगा बिकॉज +23 है ये। तो इफ यू लाइक दिस मेथड यू कैन यूज दिस, अदरवाइज उसमें एक अक्सर गलती हो जाती है वैसे। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये जेई का क्वेश्चन है आया हुआ, इज अगेन बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे मन से बना के दिया था। ये एडवांस JE1 JE2 सब में आ चुका है। कौन सा? ये 2 -2 है, अभी बता देगा -2 है ये। तुम कैसी बातें कर रहे हो? माही तुम्हें बोर्ड पे करना है क्वेश्चन, कर लो पहले कॉप नोटबुक में, नहीं तो काव्या कर देगी फटाक से।
मार्क्स आ गए फिजिक्स के कितने? 130 40 कहाँ पे कटे? अच्छा, तो चार्जिंग में इंडक्शन तो है ही नहीं कोर्स में, दे दिया उन्होंने कोर्स। अच्छा, तो फिर तो सेम ही आएगा चार्ज। प्राइस कितने हैं? आएगा बेटा एस फिजिक्स का। ये ऑप्टिक्स भी तो पढ़ना है तुम्हें, देख लेना। हाँ, जेड को रिप्लेस कर दो, क्यूब रूट अच्छा नहीं लग रहा, दोनों साइड को क्यूब कर दो, ठीक है। कंपेयर द रियल पार्ट विद रियल, इमेजिनरी विद इमेजिनरी, आंसर आ जाएगा। सिली मिस्टेक मत करना, इट माइट टेक 5 6 7 मिनट्स, लगने दो। जल्दी करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सही करने के मार्क्स हैं। नहीं, मम्मी खोल लेंगे, ठीक है, छोड़ दो। और क्या, तभी तो कंपेयर कर पाओगे रियल को रियल। ये मैं बार बार फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था अपनी नोटबुक के लास्ट 6 पेजेस छोड़ दो, वहां पे आइडेंटिटीज लिख लो। तुमने लिख ली होगी, है ना, वहां से देख लो। a+b होल क्यूब कितना होता है, कायशा बताना, सबको बता दो तुम। देख के नहीं बताना, बिना देख के बताना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस राइट, ठीक है। सो यू हैव टू यूज दिस, a+b होल क्यूब इज a क्यूब। सर -2। हाँ, ये था। और यहाँ माइनस साइन है, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारा माइनस हो जाता है। -2 किसका आ रहा है? -2 आंसर किसने बोला? सर मैंने। अरे मैंने का नाम तो होगा कुछ। मान्या मान्या हाँ, कौन? माधुरी? मान्या। मान्य, अच्छा। सर सही है गलत है? मुझे खुद पता नहीं, मुझे खुद नहीं आता। मेरा भी सेम। इससे हमारा है, तुम भी सर गलती मेरा कर रही हो। -2 आ रहा है। सब लोग गलती कर रहे हैं। सिद्धांत भैया, तुम कहाँ हो? हेलो सर। क्वेश्चन कर लिया? -2 आ रहा है मेरा भी। बिना किए? कर लिया। ओके, करो। स्लो चल रही गाड़ी बहुत। नहीं, z को तुमने रिप्लेस किया x - i/y से, फिर दोनों साइड का क्यूब कर दिया। वहाँ नोटबुक का है, तुम्हें वापस भेजना चाहिए था मेरे को आज। हाँ, तो सही तो कर रही हो, फिर दोनों साइड का क्यूब। हाँ, ठीक तो है। कंपेयर किया, अब इधर x - i/y। ये तुमने क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया है, x - i/y नहीं है। वहाँ बैठा करो, बोर्ड के पास। नहीं, 2 टर्म आएंगी ना इसमें भी। दे आर 2 रियल टर्म्स, दे आर 2 इमेजिनरी टर्म्स। देखो। हाँ, फिर यहाँ पे आइडा क्यूब कहाँ चला गया? ये कौन सी आइडेंटिटी है? आगे कंपेयर करो और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। x/p, या तो ऐसा कर लो, एक x को उधर ले जाओ और p को लेके p से डिवाइड कर दो, x/p आ जाएगा। तुम क्या कर रही हो? हम्म, सही है, इसको ओपन कर दो। x रियल है तो ये रियल आ जाएगा, और ये रियल पार्ट आएगा, उसको इक्वल कर देना। ये y है, इमेजिनरी पार्ट ये आएगा, और ये वाला इमेजिनरी हो जाएगा। क्या वो माई? a+b होल क्यूब यूज किया। हाँ, अब उसको पूरा ओपन कर दो, राइट साइड को।
4 टर्म आएंगी, 2 टर्म में आइटा आएगा, 2 टर्म में नहीं आएगा। तो जो जिसमें टर्म में आइटा आ रहा है वो वाई से माइनस वाई से इक्वल करोगी। तो उसने क्या किया, पहले ओपन किया आइडेंटिटी को यूज करके, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, है ना, इसको क्लब कर दिया, यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी, फिर कॉमन ले ले, क्या हुआ? हाँ तो वही ना, गलती वही तो है। क्या निकालना है, एक बार देखो क्वेश्चन को, क्या है, एक्स बाई पी चाहिए तुम्हें। इसको पूरे को पी से डिवाइड कर दो, इसको क्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर कट जाएगा पूरा। यहाँ पे ही गलती के चांसेस हैं नेगेटिव पॉजिटिव के। तो ये रियल हो गया ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखा करो। चलो ठीक है, एक्स को तुमने इक्वेट किया इसके साथ, और माइनस वाई को इसके साथ, आइटा हटा दो, तुम्हारा हो गया। हम्म, राघव हो गया। कर रहा हूँ दीक्षा सर। तुम्हारा क्या आंसर आया था? -2 ही आया। ओके, गुड। दिस क्वेश्चन कुड बी स्लाइटली इन अ डिफरेंट मैनर भी आ सकता है, अगर मैं इसे थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। ये नहीं कि इसी का आंसर रट लिया और एग्जाम में वो लिखा है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस साइन होता, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन इज चेंज्ड, कहाँ पे, हाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, वाई जो माइनस वाई वो प्लस वाई हो जाएगा ना, एंड द क्वेश्चन इज सपोज दिस, फिर क्या आंसर होगा? जेड में एक्स प्लस आइटा वाई था, और जो क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय पी प्लस वाई बाय क्यू डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जरा इसको करो अब। देखो, जेड जेड की वैल्यू, ये जेड था ना, जेड को इसने रिप्लेस किया एक्स माइनस आइटा वाई। जेड को सपोज यहाँ लिखोगे तुम पहले, तो क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई टू द पावर 1/3 इक्वल टू पी प्लस क्यू आइटा, ठीक है। उसके बाद क्यूबिंग बोथ द साइड, सीबीएस कर दिया, तो जब क्यूब किया तो उसका क्यूब हट गया, उसको उसने राइट पे लिख दिया, और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ए प्लस बी होल की भी आइडेंटिटी लगा दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ आइटा क्यूब आएगा विच इज माइनस आइटा, 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो आइटा स्क्वायर वो माइनस में लिख दिया। फिर रियल पार्ट को अंडरलाइन करो, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसको क्लब कर दिया। ये इमेजिनरी पार्ट है, आइटा कॉमन लेके इसको वहाँ पे लिख दिया। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट कर दिया। हमें क्या चाहिए था, एक्स बाई पी, है ना। तो इस पूरी को पी से डिवाइड कर सकते थे, इसने क्या किया, पूरा इक्वेट ही कर दिया डायरेक्टली। तुम चाह, ये नहीं किया, इसने पी से डिवाइड कर दिया इसको, यहाँ से पी कॉमन ले लो, या पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड कर दो। मैं लिख देता डिवाइडिंग बाय पी, तो ये पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, पी कट गया, एक्स बाई पी ये आ गया। इसको पूरे को क्यू से डिवाइड किया, डिवाइड बाय क्यू, तो क्यू कट गया, यहाँ से क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस साइन के से साइन चेंज हो गया, माइनस साइन से साइन चेंज हो गया, ये वाई बाई क्यू आ गया। एक्स बाई पी वाई बाई क्यू को इसने यहाँ रिप्लेस कर दिया इसमें, और सिंप्लीफाई कर दिया, -2 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ रहा है बताना, सेकंड पार्ट का? 4 मेरा 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, सभी का 4 आ रहा है, तो इसका आंसर 4 भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को हमने रट लिया और वही आंसर लिखा है, तो इट माइट चेंज, दे माइट चेंज वैल्यूज लिटिल बिट एंड आंसर वुड बी डिफरेंट। देखो, इसका आंसर 2 था, जब इसको मैंने प्लस कर दिया वाई वाले पार्ट को, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड दिस बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो जब ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करोगे तो वहाँ नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, हाँ, +4 आंसर आएगा उसका। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग लिख लेना। ठीक है यहाँ तक सभी? वन मोर क्वेश्चन, तो दिस वाज
बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। काफी सारे क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। लिख लिया था सबने? माही लिख लिया था ये? Z is equal to x plus iota y, where x, y are integers. Then the area of rectangle whose vertices are roots of equation z bar cube plus z cube z bar equals to 350। ये क्यूब होल क्यूब नहीं है, एक बार z बार का क्यूब है, एक में z का क्यूब है। whose vertices are the roots of the equation। स्क्वायर इक्वल टू equal to 350। हाँ, कहाँ पे? देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तुम लोग इधर बैठा करो, तुम्हारी मोबाइल देख देख के आंखें कमजोर हो चुकी हैं। हैं? हाँ, वो तो हो गई। कुछ दिनों बाद तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा। स्क्रॉल करते रहते ना मोबाइल, आंखें कुछ दिनों बाद अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, जो भी की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करो। सिमर, यू स्टे इन गुड़गांव ओनली? Yes, sir. ओके, देन व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन? Sir, my school runs late, so it's hard for me to come to the center after ऑल school. ऑल राइट। जेड जेड बार का क्यूब, जेड क्यूब इंटू जेड बार इक्वल टू 350। हाँ हाँ, कॉमन निकाल सकते हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ हाँ, यू कैन यूज दैट। जेड को यू कैन रिप्लेस बाय एक्स प्लस आइटा बाई, ये हो जाएगा। तुम की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया है मैंने, बस काफी है इतना। सिंप्लीफाई करो, पुश योर सेल्फ इन टू द क्वेश्चन। डरना नहीं है क्वेश्चन से, भिड़ जाओ उससे। सबसे पहले जेड इंटू जेड बार कॉमन ले लो, ठीक है? हम्म किसको? नहीं, तुम उसको मॉड क्यों कर रहे हो? तो वैसे ही हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अगर जेड एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड बार कितना हो गया? एक्स माइनस आइटा वाई। तो जेड इंटू जेड स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, दूसरा पार्ट ओपन करो ना, उसको एक्स प्लस जेड को लिख दो, एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार को लिख दो, मॉड नहीं है वो। सर हाँ बोलो। मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175। बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारा। अब नहीं इसको तो सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है, सही है, बिल्कुल बरोबर मैं है। वही पूछ रहा हूँ ना, कैसे करूँ? थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, हो जाएगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया की पॉइंट्स। वर्टिस और कुछ भी किया है मैंने। एक्स वाई आर इंटीजर्स।
हाँ, एक्स प्लस आइडा वाई से रिप्लेस करो, जेड बार को एक्स माइनस आइडा वाई से रिप्लेस करो। इसमें टाइम लगेगा भैया, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ये रिपीट होते हैं जेई में, वन में भी, टू में भी। क्या सर बच्चा? हाँ, 175 के फैक्टर के पेयर बना के कर लो। बिल्कुल सही कर रहे हो तुम, सही जा रहे हो। हम्म। इंटीजर से ही देखो, तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ रही है ना, और दो अननोन है। एक इक्वेशन है, दो अननोन है, कैसे करोगे? सर इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बन रही है, अच्छी सी बन रही है, एक्स टू द पावर फोर माइनस वाई टू द पावर फोर इक्वल टू 175। 175, यही है। हाँ आ गया हाँ जी सर। सही बन गया। हाँ, यही है ना इक्वेशन तो। तो सर इसके बाद रूट्स करके कुछ करना होगा ना? हाँ, कुछ कुछ करना पड़ता है। क्वेश्चन को देखो बार बार, कुछ कुछ होता है। ये आ रहा है, जेड टू जेड बार कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अदरवाइज कैसे सॉल्व करोगे? जेड बार का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? जेड बार है एक्स माइनस आइटा वाई, इसका होल स्क्वायर सर कर लो। जेड कितना है? एक्स माइनस एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 350, ठीक है। हाँ वियान बोलो। सर 48 बन रहा है। कैसे किया? सर 175 के फैक्टर्स में किए, 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4 से। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उससे कॉम्बिनेशन निकाले, प्लस माइनस इंटीजर्स है। हाँ। तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या कहते हैं, 4 + 4 8 और हम्म। 3 + 3 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। हाँ हाँ, टू कॉमन ले लिया, टू से इसको 375 को काट दो, 350 को। तो इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175। ये सभी का आ चुका है, ये सभी का आ गया है ना, इतना तो आ चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि दो अननोन है और इक्वेशन एक है, तो वो कैसे सॉल्व होगा? वो इस तरह से सॉल्व होगा, ये हमें दे रखा है हिंट। हाँ, ले सकते हैं। तो अब क्या हुआ, एक्स वाई इंटीजर का मतलब क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज मैं तुम्हें देता हूँ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन। एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, ठीक है। एक्स और वाई रियल नंबर है और एक्स वाई इक्वल टू वन दे रखा है, एक ही क्वेश्चन है, दो अननोन है। तो क्या आंसर, आज कितने आंसर आएंगे? इनफाइनाइट। अगर एक्स एंड वाई रियल नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे। वन वन हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, 1/2 2 हो सकता है, 1/3 3 हो सकता है, -5 × 1 -1/5, इनफाइनाइट आंसर आएंगे। लेकिन अगर तुम्हें दे रखा है कि एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, तो कितने आंसर आएंगे? सिर्फ दो। यहाँ पे वही करना है, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, तो एक्स स्क्वायर भी इंटीजर हुआ, वाई स्क्वायर भी इंटीजर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी इंटीजर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी इंटीजर हुआ। इसका मतलब इसको फैक्टराइज करो, राइट साइड को। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 175 के फैक्टर्स निकालो, एक तो हो सकता है 175 × 1, और क्या फैक्टर हो सकते हैं? 5 से करना, रिवाइज कितना आ रहा है? 25 × 7 भी एक। 35 × 7 हो गया। और नहीं क्या हो सर, सकता है? 5 हाँ, × 7, 25 × 7। 25 × 7 हो गया। मैंने 25 पहले क्यों लिखा है पता है? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर बड़ा नंबर है। ओके, और 25 × 7 हो गया, और 35 × 5। 35 × 5, ये ऑप्शन हमारे पास बन रहे हैं। तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटीजर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी इंटीजर है, हम 1/1 इनको कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब करो अब। तो पहली बार मैंने कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ले लिया 175, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ले लिया मैंने 1। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू रूट में आएगी, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक्स एंड वाई इंटीजर्स। सी, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, अगर एक्स इंटू वाई वन है और एक्स वाई इंटीजर्स हैं, तो यही पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज मैंने वन को फैक्टराइज कर दिया, 1 × 1,
या -1 इंटू -1। तो सिमिलरली यहाँ पे ना 175 को फैक्टराइज किया। पहला फैक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब मैं 1 बाय 1 कंपेयर कर रहा हूँ। तो जब मैंने कंपेयर किया, x² + y² 175 आ गया, x² - 1 आ गया। ऐड करने पे क्या आएगा? x² की वैल्यू कितनी आ रही है? 176/2, दैट इज 8। रूट रूट में आएगा ना x तो, बट x क्या है? इसका मतलब, इसका थैंक यू वेरी मच कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। नंदिनी समझ में आ रहा है? कहाँ गायब हो गए तुम? नंदिनी, आर यू देयर? गायब हो गई, सो गई है। फिर सेकंड क्या किया? सेकंड वाला करो। फिर आपको 8 कैसे आया? अरे 8 नहीं था वो, मैंने पूरा लिखा नहीं। 176/2 करो, 88 होगा। तुम भी ना एकदम पकड़ लेती हो। सेकंड क्या किया हमने? x² + y² को 25 लिया, और x² - y² को 7 लिया। ऐड करो, तो 2x² कितना हो गया? 32। x कितना आ गया? ±4। ये पॉसिबल है। इस बार x की इंटीग्रल वैल्यू आ गई। अब y निकालो, कितना आ रहा है? इसमें डाल दो 16, y² को, x² को। x की वैल्यू ±3 आ गई, y की वैल्यू, सॉरी। तो 4 वर्टिसेस हमारे पास आ चुके हैं। अब यहां तक देखो, कोई डाउट है? 4 आएंगे, 4 4 सो कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सो लिखो इक्वेशन के बाद जो हमने वो स्टेप किया था, मेरे को फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? क्या? सो वो जो स्टेप किया था जिसमें सारे वैल्यूज लिखे थे x y = 1 करके, मुझे वो समझ नहीं आया। ये वाला? नहीं सर, उससे पहले वाला जिसमें 1 1 ये, माइनस। हाँ, हाँ, ये मैंने एक कैसे है? एक ऐसे एग्जांपल दिया था कि मान लो तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, x × y = 1। बच्चे ये फिर गिवन होना है। मैंने एग्जांपल दिया था, और हम्म, मान लो कि एक्स वाई रियल नंबर है, तो कितने सोल्यूशन आएंगे इसके? इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। हाँ जी। लेकिन अगर दिया होता कि एक्स एंड वाई बोथ आर इंटीजर, तो सिर्फ 2 सोल्यूशन आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। तो हमने राइट साइड को फैक्टराइज किया, और फिर हमने बड़े नंबर से बड़े नंबर को कंपेयर किया, छोटे से छोटे को कंपेयर किया, और 1 बाय 1 देखा, तो सिर्फ इस वाले कॉम्बिनेशन में इंटीजर आ रहा है, बाकी दो में नहीं आ रहा है। तो उससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। तो अब हमारे 4 आंसर आ गए। कौन कौन से 4 आंसर आ गए, बताना मुझे। अगर मैं रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सपोज में रेक्टेंगल बनाना है, तो x = 4 क्या हुआ? x = 4 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू राइट। ये x = 4 की लाइन आ गई। x = -4 क्या होगा? यहाँ पे होगी। y = 3 क्या होगी? पैरेलल टू x एक्सिस। एंड y = -3। बस, ये तो इतना इजी है, मैं भी कर दूंगा अब। ये साइड कितनी हो गई? 8। ये कितना हो गया? 6 × 8। बड़े आराम से करने से पहले हो गया क्वेश्चन, नहीं? सर हाँ। सर मैंने सीधा वो x⁴ और y⁴ को उससे कंपेयर कर दिया था 4 और 3 से। क्या? x⁴ माइनस, -y⁴ को उसको कैसे कंपेयर कर लोगे तुम? मैंने सर हिट एंड ट्रायल से किया 4 और अरे 3 छोटे अरे नंबर से अरे, तो हो गए थे। चलो ठीक है। इसने एक बताया क्या किया है? इसको ऐसे लिखा, फिर x के y की वैल्यू डाल डाल के देख ली। बट ये तो बहुत लेंदी मेथड था। तो कितनी सर वैल्यूज तुम डालोगे ऐसे? नहीं शान, सब्सिक्वेंटली बहुत टाइम लग जाएगा। ये रेक्टेंगल का वो कैसे निकाला? अरे सर ध्यान रेक्टेंगल था का एरिया ध्यान। सबको पता है, गली के धोबी को भी मालूम है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ अरे इंटू ब्रेड्थ होता है। क्या पता है प्लॉट हाँ, कैसे, प्लॉट कैसे करा? पेन से कर दिया। ये देखो ऐसे, x = 4 is a line parallel to y-axis, right? x = -4 is a line parallel to y-axis. y = 3 is a line parallel to x-axis. y = -3 is a line parallel to x-axis. रेक्टेंगल बन गया। चाहे चारों कोऑर्डिनेट बना लो, और क्या है।
बहुत सस्ता क्वेश्चन था ये, आईआईटी एडवांस का था, लेकिन ये अभी रिपीट नहीं हुआ, जे पेपर 1 में भी नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, आ सकता है ये। और कोई डाउट है किसी को इसमें? एनीवन हैज एनी डाउट? आगे बढ़े। Now suppose I ask you what is 1 plus iota to the power say 10, बताना जरा। 1 प्लस आयोटा टू पावर 10 की वैल्यू कैसे करोगे? हम्म, बाइनोमियल से कर सकते हो। 1 प्लस आयोटा को तो सिंप्लीफाई करना बहुत इजी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होता है, दिमाग में छाप लो इसको। हाँ, सेकंड वाले में दिक्कत आएगी। मैंने लास्ट क्लास में सबको बताया था कि ये दो रिजल्ट बॉक्स में डाल के हाईलाइट कर लेना, जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको हाईलाइट कर लिया करो जब रिवीजन करते हो। इसका मतलब रिवीजन नहीं हुआ है, किसी ने कोई रिवीजन नहीं किया है दृष्टि के अलावा। हाँ हाँ, तो जब भी 1 प्लस आयोटा आएगा उसको लड्डू समझ के ना स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा टू द पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। आयोटा 5 कितना हो जाएगा? आयोटा इंटू आयोटा 4, आयोटा 4 1 होता है बचपन से ही, 32 आयोटा आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन इफ आई आस्क यू व्हाट इज 1 प्लस रूट 3 आयोटा की पावर 30, फिर उसमें भी दो टर्म आएंगी, आयोटा भी आएगा, रियल नंबर भी आएगा, फिर उसको बाइनोमियल से सॉल्व करो, पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, मैथ्स का टाइम निकल गया, हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, डोंट ट्राई। और पोलर फॉर्म होने के बाद वी कन्वर्ट, वी यूज डिमावर्स रूल। डिमावर्स रूल अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। ये होता है इफ दिस अ पोलर फॉर्म, ये मैं अभी नहीं बता रहा तुम्हें, पहले पोलर फॉर्म करते हैं। So whenever you have a complex number raised to higher power, first you convert to polar form and then use De Moivre's rule. हम्म। इसको तो दिखाई नहीं दे रहा आज, तो बोर्ड है क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है। 2 2 5 नजर, थिंक थिंक बंद क्या करो, ज्यादा क्वेश्चन करो, सोचना बंद करो। पोलर फॉर्म पे आते हैं। अब तक जो हमने किया था, इट इज कार्टेशियन फॉर्म, राइट? दिस वाज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कार्टेशियन फॉर्म से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। दिस इज आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखा जाए तो इट्स वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या होता है? एक्स इज अ रियल नंबर, तो वी कॉल इट रियल एक्सिस। सो दिस इज रियल एक्सिस and y is said to be imaginary axis. ये imaginary axis है। A complex number is over here, z, x, y. Coordinate geometry में, the first quadrant में you have x and y both positive. Second quad में क्या होता है? x negative, y positive. Third quad में negative and fourth right. Perfect. ये था। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमेशा उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस डिस्टेंस हमें क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। इट्स जस्ट लाइक दैट। Distance of a point from y-axis equals to x coordinate, and distance of the point from x-axis is y coordinate. तो suppose ये कोई complex number है,
तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y और ये डिस्टेंस हो जाएगा x, राइट। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर को, से दिस इज p, दिस इज r, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है एक्स एंड वाई आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो आर एंड थीटा आता है। आर इज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज, थीटा क्या होता है बताओ? कुछ नाम है उसका, जो तुम्हारा नाम है उसका भी नाम है थीटा। थीटा क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। नो आर्ग्यूमेंट्स, करेक्ट। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। थीटा इज सेड टू बी आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लो ये, हम आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। थीटा इज सेड टू बी आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, विल यूज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है by convention, principal argument of a complex number always lies between 180 degree included minus 180 not included। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा 180 और माइनस 180 के बीच में ही होगा। हाँ, पहले ये समझते हैं कि नेगेटिव एंगल कब होता है। लास्ट ईयर तुमने ट्रिगो में पढ़ा था एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल कैसे डिफाइन करोगे? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल, हाउ वुड यू डिफाइन एंगल? व्हाट इज एन एंगल सपोज? सर जो आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का लिखा है उसमें -180 पे इक्वल टू नहीं होगा? नहीं या होगा, सही कहा तुमने। व्हाट इज एन एंगल ये बताओ पहले। आर्क अपॉन रेडियस। अरे फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा हूँ। एंगल कैसे डिफाइन करते हो? फिजिक्स में 11th में पढ़ा है सब लोगों ने। हाँ, दो लाइन के बीच का। तो दिस इज अ रे, इफ दिस रे इज रोटेटेड like this, then the measure of rotation of a ray about its tail is called angle. Measure of rotation of a ray about its tail or origin is called angle. तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज प्लस थीटा, एंड इफ यू मेजर क्लॉकवाइज इट इज ऑलवेज माइनस थीटा। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा भी कर लेते हैं हम। हर चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी काम आएगी। तो ये जो एंगल है, सपोज मैंने ऐसे मेजर किया तो कितना होगा ये? 90 डिग्री। इफ आई मेजर इट लाइक दिस इट इज, तो -270 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल इज द सेम, दे आर कॉल्ड कौन बताएगा? एनीवन? यद्वी, -270 और 90 को क्या बोला जाएगा भाई बहन? अरे कुछ और नाम है, तुम लोग भूल रहे हो। ईशान तुम बताओ शान से। तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, क्या सप्लीमेंट बात तो है? 180 होते हैं। वो होता है वो। इनका नाम होता है को टर्मिनस एंगल्स। अगर तुम नोट्स निकालोगे लास्ट ईयर के, मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है? को टर्मिनस एंगल क्यों? बिकॉज ये और ये दोनों एक लाइन पे टर्मिनेट कर रहे हैं, दे आर को टर्मिनस एंगल्स। तो 90 एंड -270 आर को टर्मिनस। हमारा सही बोला हो ना? मैं लिखवाया था, ये याद आ रहा है इसमें अब? इसने ब्लू पेन और उससे लिखा होगा ब्लैक से, हमेशा दो पेन से यूज नहीं, वो करती तो है। सिर्फ क्वेश्चन ब्लैक से लिखती हूँ। हाँ, तो ये तो लिखा होगा तुमने। जिससे इसको मेजर किया कितना हो गया? +180। और ये ऐसे मेजर किया तो दीज आर को टर्मिनस एंगल्स बिकॉज दे टर्मिनेटिंग एट कॉमन लाइन। ये एंगल कितना हुआ? प्लस, हम्म, हाँ वो तो एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है।
मुझे बताओ 125 डिग्री का कोटोमिनस कितना होगा? माइनस तो होगा ही होगा, है ना? 2, क्या बात है, -235। हाँ, इसीलिए वो कन्वेंशन है, इसीलिए दोनों भी इकट्ठा नहीं आ रहा है। मान्या, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया। 180 एंड -180 सेम एंगल है, तो एक ही सेट को इंक्लूड करोगे। तो कन्वेंशन में 180 पॉजिटिव ऐड हो जाता है, यूज करते हैं, -180 यूज नहीं करते। अब जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेंगे, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कैसे पता लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? कायशा बताना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तुम्हें कैसे पता लगेगा? सर सर हमारा, वाई, अगर एक्स हाँ, और वाई तो एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में है ना। इसका मतलब उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 से 90 कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा? माइनस प्लस, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा फिर? 90 से 180 कुछ भी हो सकता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, तो फिर हम ये पॉजिटिव एंगल नहीं लेंगे। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आ रहा है, ये एंगल पूरा मेजर होके आ रहा है 215, तो 215 के नॉट बी द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो सर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऐसे जाना पड़ेगा, फिर नेगेटिव आएगा। हाँ, सर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है जो कि इसमें फॉल करता है, तो -180 180 में। तो कोई कोई भी एंगल जो फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब तुम ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया, उसको जी ओरिजिन से, हाँ, ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये एंगल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। ये वाला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। अभी आएगा, फॉर्मूला करते हैं। किस साइड में? नहीं, ये तो तुम्हारा हमेशा 0 होगा। माइनस वाले में ये आएगा, 180 आएगा, बिकॉज -180 इंक्लूडेड नहीं है। और कुछ? टाइम हो गया? अच्छा, टाइम तो है ना अभी। सर हाँ, बोलो। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो हो गया जो एंगल पॉजिटिव एक्स से बन रहा है। नहीं नहीं, एनी एंगल made by the complex number by joining with the origin if it falls between -180 and 180। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड में है, तो 0 से 90 के बीच में होगा। सेकंड क्वाड में तो 90 से 180 के बीच में होगा। थर्ड क्वाड में तो -90 से -180 के बीच में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 0 से -90 के बीच में आएगा। इट्स लाइक दैट। अगर अच्छा कॉम्प्लेक्स सर। नंबर थर्ड एंड फोर्थ में हुआ, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब let's see how to convert a complex number from Cartesian to polar form. The first step. The first step would be quadrant, hence the quadrant. Identify x and y. x and y को देख के तुम्हें क्वाड्रेंट पता लग जाएगा, है ना? प्लस प्लस होगा द फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस होगा द सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड प्लस माइनस होगा द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हुआ। स्टेप्स किस चीज के लिए थे? क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने का फायदा भी, उससे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा। Steps to convert Cartesian form to polar form. सेकेंड स्टेप क्या होगी? फाइंड r यूजिंग x² + y² द रूट। देखो जरा इस ट्राइंगल में r क्या आ रहा है? √(x² + y²). यही है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हमें थीटा भी निकालना है अभी। पहले हम tan अल्फा निकालेंगे बाय टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y and positive value of x. Alpha is just an angle which
इज रिलेटेड टू थीटा। अल्फा आ गया तो आर्ग्यूमेंट भी आ जाएगा। इसमें अल्फा एंगल एक्यूट एंगल मान लो 0 से 90 के बीच में, बिकॉज वाई पॉजिटिव है एक्स पॉजिटिव है तो ये एक्यूट एंगल है। मान लो थीटा है ये। अब थर्ड लास्ट स्टेप में विल फाइंड थीटा यूजिंग दिस डायग्राम। डायग्राम क्या होगा, ये अल्फा मान लो, ठीक है, ये अल्फा है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा विल बी द सेम एज अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा हैज टू बी बिटवीन 90 एंड 180। अल्फा तो एक्यूट एंगल है तो इट वुड बी 180 माइनस अल्फा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड में है तो मुझे बताओ उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा, 90 और 180 के बीच में होगा। अरे यहाँ पे कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो तो ये कितना हुआ प्रिंसिपल आर्गुमेंट, 90 से बड़ा ही तो होगा ये। लेकिन अल्फा अल्फा तुम्हारा एक्यूट एंगल आएगा बिकॉज पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स लिया है मैंने। तो हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे मिलेगा, 180 माइनस थीटा से मिलेगा। थर्ड क्वाड में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा नेगेटिव तो आएगा अल्फा माइनस 180 से। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो वो आएगा माइनस अल्फा से। सो दीज आर स्टेप्स टू फाइंड आर एंड थीटा। एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई कर लिया, क्वाड्रेंट पता लग जाएगा, फिर आर निकाल लिया पाइथागोरस, tan अल्फा निकाल लिया, एक्यूट एंगल आ गया अल्फा 0 से 90 के बीच में, फिर इस डायग्राम को देख के थीटा पता लग जाएगा। अब यहां जरा देखो, मैंने पहले बताया हुआ है किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हमें एंगल पता है ना, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस, और परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन। So if in a right triangle, if you know hypotenuse, base is always h cos theta, perpendicular is always h sin theta. Clear? इस right triangle में what is hypotenuse? R. तो x क्या होना चाहिए इसका, r cos theta. y क्या होगा, अब चुपके से x एंड y को रिप्लेस करो, छोड़ दो उसको, फिर पहले ये वाला करो फिर दोबारा करते हैं उसको, पहले ये करो। तो z हो गया r cos थीटा प्लस आइडा r sin थीटा, तो z हो गया r कॉमन, ये आ गया। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म में आई नीड टू फाइंड r, वो यहां से आ गया, आई नीड टू फाइंड थीटा, वो यहां से आ गया। सर एक बार z इक्वल टू आर कॉस थीटा वाला वापस समझा दो। x, z क्या था, x प्लस आइडा y, व्हाट इज x, आर कॉस थीटा, रिप्लेस कर दिया, व्हाट इज y, आर sin थीटा, ठीक है। रिप्लेस कर दिया, कॉमन ले लिया, सिंपल। हाँ वहीं से तो कैलकुलेट करेंगे। हाँ तुम क्या बोल रही थी बताओ, क्या, ये ऐसा करो, उसको याद कर लो, ठीक है, कि सिंस मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, सो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स उसका y भी पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव, तो उसका थीटा क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। तो जो अल्फा आ रहा है, अल्फा क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव है पॉजिटिव से, तो जो अल्फा है वही थीटा होगा। सेकेंड क्वाड में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे पता लगेगा, माइनस प्लस से पता लगेगा। अगर मान लो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड में है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल कैसे निकालोगे, ये वाला अल्फा हो गया, इसलिए 180 माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि अल्फा तुम्हारा एक्यूट है ना, पॉजिटिव है पॉजिटिव एक्स है। हाँ इसमें अल्फा थीटा नेगेटिव होगा तो अल्फा माइनस 180 हो गया, इसमें भी अल्फा नेगेटिव थीटा नेगेटिव तो अल्फा थीटा माइनस हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में विल बी कन्वर्टिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस
from polar Cartesian to polar, and then De Moivre theorem भी करेंगे and Euler formula, दो चीजें करेंगे. तो ये रिवाइज कर लेना सब लोग, ठीक है? वनीता समझ में आ गया तुम्हें? वनीता, और मॉम का लाइक डिवाइस है, दैट्स व्हाई थर्ड अच्छा अच्छा, वही ना, आई वाज वंडरिंग कि पढ़ने का है वनीता है, यू आर पढ़ने का है ना? यस सर. राइट, ओके. ओके, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सर. Yes, sir. थैंक